قومی اسمبلی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے الیکشن اخراجات کی تحریک کثرت رائے سے مسترد کر دی ہے۔ وزیر قانون نے کہا ہے تحریک کی مسترد کرنے کے بعد 21 ارب روپے سے متعلق بل کی شک وار منظوری کی ضرورت نہیں۔ اسپیکر اسمبلی نے بھی وزیر قانون کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بل کی تحریک ہی مسترد ہو گئی، اب اس کی شک وار منظوری نہیں لی جا سکتی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیز برائے خزانہ نے بھی الیکشنز کے لیے فنڈز کی فراہمی کو مسترد کر دیا ہے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کل قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں قبائلی علاقوں سمیت سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قبائلی اراکین کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے خدشات دور کیے جائیں گے اور کل وہ سیکیورٹی حکام سے سوالات بھی کر سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اراکین قومی اسمبلی، وزراء اور مشیران کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور DGISI خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ حکمران اتحاد نے سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کا قیام مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاہر نے کہا ہے بل ابھی بنا نہیں اور 8 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ بینچ میں ہم خیال ججز کو شامل کیا گیا ہے۔ سینئر ججز کو بینچ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ پیپلز پارٹی کی وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ نے کہا کیا ججز پارلیمنٹ کو اپنے اختیار سے روکنا چاہتے ہیں؟ ڈھیٹائی، ضد اور انا کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر امین الحق نے کہا ترازو کا پلڑا برابر ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس بتائیں فل کورٹ بنانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میاں افتخار نے سوال اٹھایا کہ وزیر قانون نے سپریم کورٹ میں جونیئر ججز کی تعیناتی کی حمایت کرنے پر قوم سے معافی مانگ لی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اس کے لیے جو 8 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا۔ بھی قانون سازی سے پہلے جو ہے وہ اسے بینچ میں فکس نہیں کیا جاتا۔ اس قانون کو چیلنج کرنا شہریوں کا حق ہے اور پھر کورٹ اسے ایگزامن کر سکتی ہے۔ ساری جو صورتحال ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بہت الارمنگ ہے۔ موجودہ بل کو پری میچور سٹیج کے اوپر ایک سلیکٹیو بینچ بنا کے اس کے سامنے لگانا جس میں کہ سینیورٹی کے تمام اصولوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں اور جس سمت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بڑی معذرت سے میں عرض کروں گا کہ یہ ایک ٹکراؤ کسی کیفیت جو ہے یہ پارلیمان کی طرف سے نہیں ہے۔ پارلیمان کا یہ آئین اور قانون کے تحت اختیار ہے، وہ قانون سازی کرے۔ کیا آپ پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات کے استعمال سے روکنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے یا ہم قبول کر لیں گے؟ بالکل نہیں۔ پارلیمان کو اس کے اختیارات کو روکنے کی یہ جو صحیح ہو رہی ہے یہ بالکل قابل قبول نہیں۔ ترازو کا پلڑا برابر ہونا چاہیے، ہر صورت میں فل کورٹ بینچ کو تشکیل دیا جائے، کلیکٹیو وزڈم ہو۔ پاکستان میں ایک ہی نظام ہے، پارلیمانی وفاقی نظام ہے، اس میں پارلیمنٹ سپریم ہے، تمام اداروں کے اپنے اختیارات ہیں، اس کے مطابق اس کو چلنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی وقار کے لیے، پارلیمنٹ کی وقار کے لیے، عدلیہ کے وقار کے لیے ان کو اس بینچ پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا ہے جائزہ لینا ہے کہ اس معاملے میں آئینی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی۔ عدالت نے سیاسی جماعتوں، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی اہم معاملہ ہے، پارلیمنٹ کا بہت احترام ہے کہ اس کو جلد دوبارہ مقرر کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں کی سماعت درخواست گزار راجہ عامر کے وکیل امتیاز صدیقی نے کہا موجودہ حالات میں یہ مقدمہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قاسم سوری کیس کے بعد سیاسی تفریق میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ لارجر بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن رضوی اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل ہے۔ وکیل امتیاز صدیقی نے کہا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ بل قانون بننے کے لائق ہے۔ کابینہ کی جانب سے بل کی توثیق کرنا غیر قانونی ہے۔ بل کابینہ میں پیش کرنا اور منظوری دونوں انتظامی امور ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کے مطابق پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کی طرح عدلیہ کو بھی آئینی تحفظ حاصل ہے۔ امتیاز صدیق نے کہا صدر ریاست پاکستان کی وحدانیت کی علامت ہے۔ صدر کا عہدہ صرف رسمی نوعیت نہیں ہے۔ صدر نے بل کا دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے اس مقدمے میں عدلیہ کی آزادی سے متعلق سوال موجود ہے۔ چیف جسٹس نے کہا عدلیہ کی آزادی اہم معاملہ ہے، پارلیمنٹ کا بہت احترام ہے۔ وکیل نے فیصلے تک مجوزہ ایکٹ کو قانون بننے
बनने से रोकने की इस्तदा की। कहा जायजा लेना है तो इस मामले में आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। प्रोडक्शन टीम के साथ जहांजेब अब्बासी, न्यूज़ इस्लामाबाद। जबकि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इतराफ़ किया है कि अप्रैल 2022 में जो रूलिंग दी वो गलत थी। असद कैसर ने वीव न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अदम एतमाद के मौके पर किसी किस्म का दबाव नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त न्यूट्रल नजर नहीं आ रही थी। हमें उम्मीद है कि वो एपॉलिटिकल रहेंगे। इस वक्त पार्लियामेंट में जो कानून साजी की जा रही है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का रास्ता साफ करना है। पार्लियामेंट में जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पर अदलिया के दरमियान तनाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। इमरान खान पर इस वक्त 144 मुकदमात हैं। रहनुमा पीटीआई एजाज चौधरी की गुफ्तगू। कहा सैकड़ों की तादाद में कारकुनान अभी भी जेल में है। जितना दबाव ये पैदा करने की कोशिश करते हैं उतनी ही इमरान खान के लिए चाहत लोगों में बढ़ती है। कहा जिस 100 मोटो की ये खुद पैदावार है आज ही उसी 100 मोटो का एतराज़ कर रहे हैं। तौहीन अदालत पर अगर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को नाअहल किया जा सकता है, यहाँ तो पूरी काबीना बशमुल वज़ीर आज़म भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, वो भी नाअहल होंगे। यह हुकूमत की फस्तायत है। 144 मुकदमात चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर हो चुके हैं और हज़ारों लोग गिरफ्तार हैं और गिरफ्तारियों से ज़मानत के ऊपर जा चुके हैं। उनकी तादाद भी हज़ारों के अंदर है। सैकड़ों लोग इस वक्त भी जेलों के अंदर मौजूद हैं और जो अदालतों का सामना कर रहे हैं। हम में से कोई एक लीडर भी या एक कारकुन भी ऐसा नहीं है कि जो अदालतों का सामना न कर रहा हो और वो भाग जाए या छुप जाए या फरार हो जाए। तमाम पूरी तरह एक साल से अपने लीडर की तरह वो अदालतों का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर परवेज इलाही ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच में तमाम काबिल जजेस मौजूद हैं। अदालती बिल के खिलाफ समाअत से पहले ही शहबाज काबीना का बेंच को मुस्तरद कर देना गैर जमहूरी और गैर आईनी अमल है। शहबाज शरीफ काबीना ने हट धर्मी इख्तियार कर रखी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी वजाहत हुसैन से पीटीआई सेंट्रल पंजाब के साबिक सदर उमर डार, जुल्फ़िकार घुम्मन और आसिफ चट्ठा एडवोकेट ने मुलाकात की। इस मौके पर परवेज इलाही ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम वकला, बार काउंसलर्स और अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के बगैर हुकूमत और रियासत का कोई तस्वुर नहीं। सुप्रीम कोर्ट को माइनस करके कोई हुकूमत अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। हुकूमत को गलत फहमी है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद रोक सकती है। इलेक्शन अवाम का बुनियादी हक और जमहूरियत की रूह है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मियां हॉस्पिटल का दौरा। साहिवाल में धक्कम पेल से जख्मी होने वाली बुजुर्ग खातून सुगरा बीबी की अयादत की। एमएस मियां हॉस्पिटल ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को सुगरा बीबी की सेहत के बारे में आगाह किया। मोहसिन नकवी ने एमएस मियां डॉक्टर मुनीर मलिक को खातून की मजीद देखभाल की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने जख्मी खातून की बेटे से मुलाकात की, इलाज पर इत्मीनान का इजहार भी किया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद सिंधु ने कहा है कि पाकिस्तान में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करने का वाहिद जरिया आइन की बालादस्ती पर अमल दरामद करना है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में खालिद मसूद सिंधु ने कहा कि हुक्मरानों की नाकाम मुआशी और इंतकामी पॉलिसीज की वजह से कौमी इदारों को अपने ही मुल्क में गिरवी रखा जा रहा है। इससे हम दुनिया भर में हमारी नाअहली क्या होगी कि PTL और PIA जैसे इदारों की डाउन साइजिंग करके इनको बेच दिया गया। हुक्मरानों ने कर्जे लेकर मुल्क को इस बोझ नीचे दबा दिया है। कर्जे लेकर मईशत में कभी भी इस्तेहकाम पैदा नहीं किया जा सकता। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम का वाहिद हल खुद इन्हिसारी और किफ़ायत शुमारी की पॉलिसी को अपनाकर और अपने वसाइल को बरूबे कार लाकर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकाला जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA PP 69 मियां मामून जाफर तारड़ ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। जलालपुर भटिया में मियां मामून जाफर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साबिक MNA शौकत भट्टी के ग्रुप के पैनल के साथ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। पार्टी की पॉलिसी है कि MNA और MPA इकट्ठे एक पैनल बनाकर इलेक्शन लड़ें। मैं अपने लीडर को ब्लैकमेल भी नहीं करना चाहता, इसलिए आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा।
हुकूमती बलूचिस्तान ने सैलाब मुतासरीन समेत 1 लाख मुस्तहिक खानदानों को रमज़ान फूड पैकेज की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया है। 1 अरब 87 करोड़ रुपए की लागत से इस फूड पैकेज के बारे में बताएंगे कोयटा से अजीज मरी। PDMA के वेयर हाउस में मुस्तहिक अफराद के लिए रमज़ान फूड पैकेज की तैयारी। ये फूड पैकेज सैलाब मुतासरीन और दीगर मुस्तहिक अफराद को फराहम किया जाएगा। जो बलूचिस्तान में जो सैलाब आए उनसे हमारे गरीब बहुत मुतासर हुए, स्पेशली उनके लिए ये एक रिलीफ का बाइस बनेगा। इस महंगाई के दौर में और स्पेशली रमज़ान में अगर ये रिलीफ पैकेज एक गरीब फैमिली को मिल जाता है तो ये उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। फूड पैकेज के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बलूचिस्तान के वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने बताया, हर फूड पैकेट 17,500 रुपए की अशिया पर मुश्तमिल होगा। रमजान फूड पैकेज की मजमूई लागत 1 अरब 87 करोड़ रुपए है। तो ये 1 महीने का राशन है। तकरीबन एक फैमिली के पैकेज को 17,000 कोई 500 के उस हिसाब से लगाया गया है, तो ये मेरे ख्याल में कोई 1 अरब 87 करोड़ बनता है। कोयटा में पैकिंग के बाद रोजाना 500 फूड पैकेट हर जिले में पहुंचाई जाएंगी। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ अजीज मरी, न्यू कोयटा। जाली ट्रेडिंग कंपनी ने पाकिस्तानियों के अरबों रुपए लूट लिए। मुल्जिमान ने 8 नामी कंपनी बनाई और ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर रकम बटोरते रहे। SCCP और FBR में रजिस्ट्रेशन का दावा भी करते रहे। पोश इलाके में कायम हेड ऑफिस बंद, राबिते भी बंद। सरमायाकारी करने वाले शहरी परेशान और मारे मारे फिर रहे हैं। ये मामला है क्या? अशरफ मेहताब हमें बताएंगे। बताइएगा अशरफ। जी वहाँ बिल्कुल ये एक ट्रेडिंग कंपनी खोली गई थी जिसमें ये जाता दिया जाता था कि आप अपने पैसे इन्वेस्ट करें, वो आगे मुख्तलिफ सेक्टर में पैसे लगा के तो वहाँ से जो प्रॉफिट आएगा उसमें से आपको मुनाफा देंगे। तो ये सिलसिला कुछ देर चलता रहा। तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, करोड़ों रुपए जो है इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो फिर अचानक एक दिन जो है उनके सारे राब्ते बंद हो गए। ऑनलाइन जो उनका ऐप थी वो भी बंद हो गई, फेसबुक भी बंद हो गई। तो लोगों को शुबा हुआ और वो फिर उनमें से कुछ लोग उस हेड ऑफिस पे आए, डिफेंस में जो वाक़या था, तो वहाँ पता चला कि वो तो फर्नीचर तक और सब कुछ उठा के चले गए और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो फिर लोगों ने FIA में जाके साइबर क्राइम में अपनी शिकायत दर्ज कराई और वहाँ पे फिर इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब मालूम नहीं कि वो लोग कहाँ गए। शुक्रिया आपका अशरफ। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज के तरीक़ाकार में मज़ीद तब्दीली। इंश्योरेंस कंपनी ने सेहत कार्ड से इलाज कराने वाले मरीज की तस्वीर लाजमी करार दे दी है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने तमाम पैनल हॉस्पिटल्स को नए SOP से मुतालिक मुरासला भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पैनल में शामिल हॉस्पिटल्स में कायम हेल्थ फैसिलिटेशन डेस्क पर वेब कैम की फराहमी लाजिम होगी। मरीजों की तस्वीर डेस्क पर नस्ब वेब कैम से ली जा सकेगी। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करेंगे। अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिक वकील पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में $500 मिलियन का मुकदमा दायर कर दिया है। साबिक सदर ट्रंप का कहना है कि माइकल कोहेन ने बतौर अटर्नी बेहतरीन मफादात में काम करने के अपने फर्ज की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी बिना पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम के बाइस माइकल कोहेन पर $500 मिलियन का दावा कर दिया है। माइकल कोहेन ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस में मुतवक्के गवाह है। ट्रंप एक बार फिर माइकल कोहेन के खिलाफ हरासा करने और धमकी देने के लिए अदालती निजाम का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने बढ़ते हुए कानूनी खतरात से खौफजदा है।